Hello students. In this lecture we'll continue further with capacitors. This is the fifth lecture on capacitors. Okay. In the previous video we had analyzed parallel plate capacitors. Okay. We had seen what happens when you insert a dielectric. Okay. So उसी conversation को थोड़ा और revise करते हैं और आगे लेके जाते हैं. So let's consider a capacitor. Okay. Which is an air capacitor. बीच में कुछ नहीं है. Okay. Let's say इसका capacitance है C naught and your EMF of the battery is E. Now हम लोग ये मानते हैं कि यहाँ पे बैटरी का काम होता है चार्ज सप्लाई करना. So this battery what it will do is it is going to charge this capacitor. Okay. When the charging is complete, I can say when charging is complete, then the charge on the capacitor Q naught will be equal to C naught into E, correct? So ये जो capacitor पे charge होगा that will be equal to C naught into E. Also the EMF potential difference across the capacitor plates would be equal to E. Potential difference will be equal to E. Okay. अच्छा E नहीं देते हम लोग EMF. Let me write it as E1. तो ये confusion नहीं होगा E1. ओके नाउ एक बार इस पे ये क्यू नॉट चार्ज आ गया. अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स. सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स will be equal to potential difference divided by D ना. ये D is the distance between two plates. So in this case I can say electric field between the plates is equal to, इसको हम लोग let me write it as E naught. This is equal to potential difference between the plates, that is E1 divided by the distance between two plates D. Okay. अब हम लोगों ने बैटरी हटा दी है. So what we now have is a charged capacitor. Okay. So you have positive charge on this plate and you have negative charge on this plate. Now what we are going to do is we are going to insert a dielectric. Okay. of exactly same dimensions ताकि ये बीच का जो एयर है या एयर की जो ये खाली स्पेस है वो खाली स्पेस पूरी तरह से भर जाए. So this is your dielectric of constant K. Now when this happens क्या क्या चीजें चेंज होंगी, क्या क्या चीजें सेम रहेंगी. सी चार्ज जो था इन प्लेट्स पे, चार्ज के पास अब जाने के लिए कोई और जगह नहीं है ना. चार्ज जो है वो इन्हीं प्लेट्स पे रहेगा, करेक्ट. क्योंकि अगर जो यहाँ पे आपने वायर्स कनेक्ट कर दी तो जाके ये चार्ज मूव करेगा. सो व्हाट आई वाज सेइंग इज अगर जो यहाँ पे वायर्स होती कनेक्टेड तो ये चार्ज कहीं पे जा पाता. But because there are no wires over here, this charge will remain as it is. So I can write on inserting dielectric. On inserting dielectric, let's see what will happen. Okay, charge remains same. Same. That is Q naught. So जितना प्रीवियस चार्ज था चार्ज उतना ही रहेगा. अच्छा, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस. अब हमें ये पता है ये कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस वुड बी इक्वल टू K टाइम्स योर ओरिजिनल कैपेसिटेंस. ओके. नाउ वी विल सी व्हाट विल हैपन टू द पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स is equal to charge divided by C. Q naught की वैल्यू पता है हमें C naught into E1 divided by K into C naught. ये कट हो जाएगा. So this is E1 by K. So I can write therefore potential difference decreases by a factor K. Factor K. ठीक है. अच्छा, नाउ वी विल सी व्हाट विल हैपन टू इलेक्ट्रिक फील्ड. हमें पता है कि जैसे ही आप डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे, लेट्स सी इलेक्ट्रिक फील्ड.
हमें पता है ना, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है. देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड is simply equal to potential difference between the plates divided by distance between the plates. Potential difference between the plates is equal to E1 by K to D. Acha, now E1 by D is your original electric field. So I can write this as E0 by K. So therefore, on inserting a dielectric, electric field reduces by a factor K. ठीक है. अब हम लोग वो देखते हैं कि what happens to the energy stored. Okay. Now energy stored before inserting dielectric. Before inserting dielectric is equal to. अच्छा, जब आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया था तो उसके पहले एनर्जी स्टोर्ड कितनी थी? इट इज इक्वल टू हाफ into charge, that is Q naught, into potential difference between the plates, that is E1. Now energy stored after inserting the dielectric this will be equal to half charge on the plates, same as charge remains same, so Q naught into potential difference between the plates, that is E1 by K. Now you can see that half Q naught into E1, this is the energy stored before inserting the dielectric, इसको हम लोग लिखते हैं U naught. So this becomes equal to half U naught by K. ओके, सॉरी, जस्ट हाफ नहीं होगा, ये हाफ इंटू यू नॉट इंटू ई वन इज हाफ इंटू क्यू नॉट इंटू ई वन इज यू नॉट, सो दिस विल बी यू नॉट बाय के. सो देयरफॉर एनर्जी स्टोर्ड decreases by a factor k. ठीक है, फाइन. अब finally we will go on to the last part, that is what will happen now if you again charge this capacitor. आप इस कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक से कनेक्ट करने के बाद अब वापस आप इसको बैटरी से कनेक्ट करते हो. ओके, सो लेट्स से यू हैव दिस. Okay. You connect it to a battery E1. Now in this case, let's see what would happen. Now your final charge, so after charging is complete, what will be the final charge? अब इसका कैपेसिटेंस है K into C naught, and potential difference between the plates will now become equal to E1. Potential difference between the plates will be equal to E1. ठीक है, क्योंकि ये plates, these plates are connected to the terminals of the battery ना, तो finally जब charging complete हो जाएगा तो इसके across जो potential difference होगा that will be same as E1. So potential difference between the plates would again be equal to E1. So your final charge would be nothing but capacitance, that is K into C naught, multiplied by potential difference between the plates, that is equal to E1. Now C naught into E1 is basically your initial charge. So this will be K into Q naught. So that is, I can say, final charge
increases by a factor k. ओके ना, जब तक आपने इसको वापस, फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, पहले चार्ज किया था, फिर हम लोगों ने बैटरी हटा दी थी और बस डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया था। तो हमने ये कहा था कि इस पे, इस कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो दैट चार्ज रिमेन्स सेम। बट हम लोग इस कैपेसिटर को वापस चार्ज कर रहे हैं ना, वी आर अगेन चार्जिंग दिस कैपेसिटर। सो नाउ वी कैन नॉट से द चार्ज विल रिमेन सेम, क्योंकि नाउ यहां से बैटरी से वापस इस कैपेसिटर पे चार्ज फ्लो हो सकता है। So in this case, your final charge would be equal to the capacitance, which is K into C naught, multiplied by the potential difference between the plates, that is equal to E1. Okay. So final charge now increases by a factor K. I hope you have understood this. इसमें अब आपको डाउट नहीं है. Okay. ठीक है. Potential difference between the plates is again E1. Starting में भी you can see that इस case में भी potential difference between the plates was E1. And finally also potential difference between the plates is also equal to E1. The reason is because you are again connecting this capacitor to the battery. ये capacitor जो है हम लोग इसको वापस बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं. Okay, fine. Now let's see what happens to the energy. Now final energy stored in the capacitor is equal to half into charge, which is K into Q naught, multiplied by potential difference between the plates, that is E1. So this becomes equal to U naught into K. So even your final energy stored increases by a factor K. Increases by a factor K. यहां पे ये जो केस हम लोग कर रहे थे, यहां पे हमें डिक्रीजेस बाय फैक्टर के इसलिए आ रहा था क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद इसको आप चार्ज नहीं कर रहे थे, यू वर एंड चार्जिंग दिस अगेन। बट यहां पे हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद वापस इसको चार्ज कर रहे हैं, राइट? सो दैट इज व्हाई योर नंबर्स आर चेंजिंग ओवर हियर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ओके, कि एग्जैक्टली डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पे क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद चार्जिंग नहीं करो तो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद चार्जिंग करो तो क्या होता है, ठीक है। नाउ वी विल लुक एट टू थिंग्स, व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स। जैसे सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स होता था ना, उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि व्हाट वुड हैपन व्हेन यू हैव सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स, ओके ओके। सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स। नाउ रेजिस्टर्स को आप दो तरह से, नॉर्मली दो कॉमन टाइप के कनेक्शंस कौन से होते थे, सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। बाय द सेम लॉजिक कैपेसिटर्स के अंदर भी सेम चीज होती है, यू कैन हैव सीरीज कनेक्शन एंड यू कैन हैव पैरेलल कनेक्शंस, ओके। सो व्हेन आई से कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट? ओके, लेट्स से यू हैव थ्री कैपेसिटर्स C1, C2, C3, okay, they are connected to a battery. See, कैपेसिटर्स के बीच में you have gap, right? तो आपका बेसिकली सर्किट ब्रेक हो रहा है। सर्किट ब्रेक हो रहा है तो इसके वजह से क्या होता है, जैसे हमने यहां पे देखा, इनिशियली जब चार्ज नहीं होता तो ये बैटरी से चार्ज निकलता है, ओके, एंड इन प्लेट्स पे अक्यूमुलेट होता जाता है। सो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट होगा, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट होगा। सो जब तक the potential difference, till the time potential difference between the plates of the capacitor is less than E1, that is the EMF, okay, जब तक ये potential difference across the plates is less than E1, charge flow होता जाएगा। charge flow होता जाएगा तो I can say there is current in the circuit, the circuit, ठीक है। इवेंचुअली क्या होगा, इवेंचुअली इन दोनों पे इनफ चार्जेस आ जाएंगे ताकि इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस ओवर हियर। सो व्हेन दिस पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स इक्वल टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस, वी से दैट द चार्जिंग इज कंप्लीट
and when the charging is complete, no more charge will flow. No more charge flows, इसका मतलब जब charge flow नहीं होता तो we can say the current becomes zero. So current in the circuit becomes zero. ठीक है, क्योंकि अब करंट यहां से पास हो ही नहीं सकता. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि whenever the charging is incomplete, जब तक आपका चार्जिंग इनकम्प्लीट है सर्किट के अंदर करंट होगा. जैसे ही आपका चार्जिंग कंप्लीट हो जाता है, करंट इन द सर्किट विल बिकम जीरो. सर्किट का जो करंट है दैट विल बिकम इक्वल टू जीरो. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है. ओके, सी बीच में एयर है ना, बीच में यू हैव अ बैड कंडक्टर, तो चार्जेस ऐसे जंप नहीं कर सकते यहां से यहां पे. सो चार्जेस यहां से यहां पे जा नहीं सकते, तो बेसिकली आपका जो सर्किट है वो यहां पे ब्रेक हो जाता है. एंड बिकॉज सर्किट यहां पे ब्रेक हो जाता है, करंट इन द सर्किट बिकम्स जीरो. ओके, नाउ बाय द सेम लॉजिक लेट्स कम ओवर हियर, लेट्स सी व्हाट वुड हैपन. ये जो बैटरी है, मान लो ये बैटरी यहां से प्लस क्यू चार्ज देती है एंड यहां से इट गिव्स यू अ चार्ज ऑफ माइनस क्यू. ओके, नाउ इफ इट गिव्स यू अ चार्ज ऑफ प्लस क्यू, ये प्लस क्यू चार्ज जो है वो इसी यहां पे ही रहेगा. इनसाइड सरफेसेस पे चार्जेस होंगे. यू हैव टू रिमेंबर दिस, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है. द चार्जेस वुड बी ऑन इनसाइड सरफेसेस. ओके, सो देयर वुड बी अ प्लस क्यू चार्ज ऑन दिस एंड यहां से नेगेटिव चार्ज निकलेगा, देयर वुड बी अ माइनस क्यू चार्ज ऑन दिस. करेक्ट. Now because you have plus q charge on this plate, you have minus q charge on this plate. हमें ये पता है कि ये जो if you consider this capacitor C1, ये कैपेसिटर आपका C1 है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा. दिस इज प्लस क्यू. मैं बस बाहर इसलिए बना रहा हूं ताकि वो दिखने में इनकन्वीनियंट, मतलब अंदर बनाऊंगा तो बहुत ही वो क्या कहते हैं खिचड़ी बन जाएगी. ओके, तो इसलिए मैं बाहर बस दिखा रहा हूं ये चार्जेस. अब इस प्लेट पे अगर जो अंदर वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्जेस आ गए, तो वी नो दैट इस प्लेट पे यू वुड हैव इक्वल नेगेटिव चार्जेस माइनस क्यू. करेक्ट. नाउ इफ यू लुक एट दिस पार्ट ओवर हियर, ओके, डू यू थिंक दिस प्लेट इज कनेक्टेड टू द बैटरी? ये प्लेट बैटरी से कनेक्टेड ही नहीं है, क्योंकि इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में वापस यू हैव अ बैड कंडक्टर. इस प्लेट एंड इस प्लेट के बीच में अगेन यू हैव अ बैड कंडक्टर. सो दिस पार्ट ऑफ द सर्किट इज इन नो वे कनेक्टेड टू द बैटरी. करेक्ट. दिस पार्ट इज नॉट कनेक्टेड टू द बैटरी. टू द बैटरी. अब if this part is not connected to the battery, net charge on it should not change. So इस पे जितना चार्ज था प्रीवियसली उतना ही चार्ज रहना चाहिए. अब प्रीवियसली इस पे चार्ज जीरो था, तो नेट चार्ज ऑन दिस पार्ट शुड बी इक्वल टू जीरो. इस सेक्शन पे आपका नेट चार्ज जीरो होना चाहिए. अब हमें पता है कि इस प्लेट पे ये जो सेकेंड प्लेट है, दिस हैज अ नेगेटिव चार्ज ऑफ माइनस क्यू. तो ओवरऑल चार्ज इस पे जीरो होने के लिए दिस प्लेट शुड हैव प्लस क्यू चार्ज. इस पे ये जो चार्ज है दिस शुड बी प्लस क्यू. ये आया आपको समझ में? तभी जाके दिस इज योर माइनस क्यू, दिस इज योर प्लस क्यू माइनस क्यू वुड बिकम जीरो. सिमिलरली इफ यू फोकस ऑन दिस पार्ट, दिस इज ऑल्सो नॉट कनेक्टेड टू द बैटरी. ये देखो ना, ये प्लेट एंड ये प्लेट डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है ही नहीं. अब वी नो दैट व्हेन वी टॉक ऑफ C2, तो C2 के इस प्लेट पे वी हैव पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू. तो ऑब्वियसली ये वाली जो प्लेट है इट शुड गेट अ नेगेटिव चार्ज ऑफ माइनस क्यू. करेक्ट. नाउ इफ दिस गेट्स अ नेगेटिव चार्ज ऑफ माइनस क्यू, this plate, because this is also isolated, it is not connected to the battery, तो इस पे भी आपका नेट चार्ज जो है वो जीरो होना चाहिए इस सेक्शन पे. सो अगेन द नेट चार्ज ऑन दिस शुड बी जीरो. तो अगर जो इस प्लेट पे ये जो C2 है, C2 के इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है,
तो ये वाली C3 की जो ये वाली प्लेट है इस पे क्या चार्ज आना चाहिए? इफ दिस हैज अ माइनस Q चार्ज, दिस शुड हैव अ चार्ज ऑफ प्लस Q, ताकि नेट चार्ज ऑन दिस सेक्शन बिकम्स 0. देन यू हैव अनदर प्लेट ऑफ C3 एंड हमें पता है दिस प्लेट इज कनेक्टेड टू द बैटरी और यहां से माइनस Q चार्ज आ रहा है, दिस इज प्लस, यहां से माइनस Q चार्ज आ रहा है, विच शुड बी फाइन क्योंकि इस सरफेस पे प्लस Q चार्ज है तो देयर शुड बी अ माइनस Q चार्ज ओवर हियर. So what you see over here is this is the charge distribution and हर capacitor पे now you have a same charge Q, Q and Q. So when I say capacitors are connected in series, ये आपका series connection हुआ. So I can say when capacitors are connected in series, therefore charge on each capacitor is same. Is same. ठीक है. Now when the charge on each capacitor is same, now let's see अब इसको आगे कैसे एनालाइज करेंगे. Okay. Let's say यहाँ पे हमें ये पता ही है कि ये जो तीन कैपेसिटर है ये सीरीज में, हर एक कैपेसिटर पे इक्वल चार्ज है. सो लेट्स से द चार्ज ऑन एवरी कैपेसिटर इज Q. ओके, सॉरी, Q एंड Q. हर कैपेसिटर पे जो चार्ज है लेट्स से दैट इज इक्वल टू Q. ओके, एंड ये जो Q चार्ज है ये कहाँ से आ रहा है? ये बैटरी से आ रहा है. बैटरी सप्लाइंग यू चार्ज Q. ओके, नाउ व्हेन आई से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मीनिंग क्या होता है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मीनिंग ये होता है कि अगर जो आप इन तीन कैपेसिटर्स को एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दो, रिप्लेस इट विद सिंगल कैपेसिटर, लेट्स कॉल दिस एज C इक्विवेलेंट. अच्छा, विद द सेम बैटरी दैट यू हैव ओवर हियर, तो यहां से बैटरी जितना चार्ज सप्लाई कर रही है उतना ही चार्ज बैटरी शुड सप्लाई. बैटरी शुड सप्लाई सेम अमाउंट ऑफ चार्ज. ओके, so when I say equivalent capacitor क्या होता है? It is basically when you replace these capacitors with this capacitor, battery should still supply same amount of charge. इसको हम लोग कहते हैं equivalent capacitance. Okay, now in this case I know that this charge Q, this will be equal to C equivalent into V. So therefore I can write C equivalent as Q by V, or V is equal to Q by C equivalent. ठीक है. Now let's go over here और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हो. So if I call this point as point A, this point as point B, तो ये भी आपका point A होगा and ये भी आपका point B होगा. This point, let me call this point as point D and this point as point E. So I can write VA minus VB is equal to VA minus VD plus VD minus VE plus VE minus VB. Okay, let's say इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज V2 एंड इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज V3. Okay, so when I write it this way, so VA minus VB can be written this way, right? Minus D plus D कट हो जाएगा, minus E plus E कट हो जाएगा. Now VA minus VB, so इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज V. VA minus VD, इन दोनों के बीच में कैपेसिटर कनेक्टेड है एंड कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज V1. So this term will be V1, this term will be V2 and this term will be V3. V becomes equal to V1 plus V2 plus V3. Therefore, V becomes equal to V1 can be written as Q by C1, V2 can be written as Q by C2, V3 can be written as Q by C3. Okay, and आप V को कैसे लिख सकते हो? Q by C equivalent. So V can be written as Q by C equivalent. अब हर जगह से ये Q तो कट हो जाएगा. So I can write
1 by C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, so on and so forth. So when capacitors are connected in series, आप equivalent capacitance ऐसे निकालते हो. See, this is similar to when resistances are connected in parallel, right? So this is for series connection. ठीक है. एंड अगर जो आपको फाइनली चार्ज फाइंड आउट करना है तो चार्ज वुड बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V मल्टीप्लाइड बाय C इक्विवेलेंट. ठीक है. सो फॉर सीरीज कनेक्शन दिस इज हाउ यू फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. अब जो हम लोगों ने पैरेलल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन के लिए पढ़ा है वही चीजें सीरीज कैपेसिटर कनेक्शन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव ऐसे n capacitors connected in series of equal capacitance, मान लो सबका capacitance equal है तो आपका C equivalent हो जाएगा simply equal to C by N. ठीक है. So I hope you have understood this. इसमें अब आपको कोई भी डाउट नहीं है. Okay. Let's do one more thing now. Let's say when you have only two capacitors, so let's analyze this. So you have C1, C2 connected to a battery of EMF V. ओके. अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. हमें पता है कि इन दोनों पे चार्जेस सेम होंगे Q एंड Q एंड यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा. सबसे पहले तो C इक्विवेलेंट कितना होगा इस केस में. C इक्विवेलेंट हमें पता है कि व्हेन देयर आर ओनली टू रेजिस्टेंसेस तो हम लोग R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं. R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. सो दिस विल बिकम C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. दिस वुड बी योर C इक्विवेलेंट. सो देयरफॉर टोटल चार्ज Q वुड बी इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V. सो दिस इज C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इनटू V. ओके. अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि दोनों कैपेसिटर्स पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है. सो V1 विल बी इक्वल टू Q बाय C1. Q बाय C इज V, राइट. सो Q बाय C1, सो आप इसको C1 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V. यू कैन सी दैट दिस इज सिमिलर टू योर करंट डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जो दो रेजिस्टेंसेस है एंड आपने इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है. दिस इज I, लेट्स से दिस इज R1, दिस इज R2. यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है लेट्स से दैट इज I1. यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I2. तो हमें ये पता है ना I1 आप कैसे निकालते हो. I1 इज इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Y. बाय द सेम लॉजिक आप V1 कैसे निकालते हो. V1 is basically potential difference across this capacitor. It is equal to C2, the second capacitor, divided by C1 plus C2 into V. And by the same logic, आपका V2 कितना होगा. Potential difference across this capacitor, it will be C1 upon C1 plus C2 into V. ठीक है. So I hope you have now understood how to analyze or how to find out equivalent capacitance when capacitors are connected in series. अब हम लोग वो देखते हैं कि what happens when capacitors are connected in parallel. ये बहुत ही सिंपल है. Parallel connection. Okay. So you have C1, C2, C3 and this is connected to a battery. अच्छा, what do you think would be the answer. यहाँ पे आपका equivalent capacitance कितना होगा. Correct. If you are thinking it is C1 plus C2 plus C3 so on and so forth, that should be correct. उतना ही होगा. So अब ये फटाक से प्रूव करता है. So let's say यहाँ से प्लस Q चार्ज निकल रहा है, यहाँ से माइनस Q चार्ज निकल रहा है. ओके. ये चार्ज जैसे ही जंक्शन पे जाएगा थोड़ा सा डिवाइड हो जाएगा. तो
कुछ चार्ज यहाँ पे चला जाएगा, कुछ चार्ज ऊपर चला जाएगा। वैसे ही जैसे ही इस जंक्शन पे पहुंचेगा वापस ये डिवाइड हो जाएगा, कुछ चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, कुछ चार्ज ऊपर चला जाएगा। सो इवेंचुअली अगर जो इस प्लेट पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज Q1, यहाँ पे चार्ज Q2 एंड यहाँ पे चार्ज Q3 है, तो आपका ये जो टोटल चार्ज Q है इट इज डिवाइडेड एज Q1 plus Q2 plus Q3. You can write your total charge this way, right? And similarly minus Q है तो वो भी इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। So यहाँ पे चार्ज होगा that will be minus Q1, this will be minus Q2, this will be minus Q3. Okay. Now because they are all connected in parallel, okay, they are all connected between same 2 points. So if this is A, this is B, ये point भी AB होगा, this will also be AB, this will also be AB. Because they are connected across same 2 points, I can say potential difference across them will be same. So let's say potential differences are V1. नहीं V1 नहीं, same है ना potential difference, V, V, V. अब हम लोग इस रिलेशनशिप को यूज करते हैं, Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. आपको इन तीन कैपेसिटर्स को एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के साथ रिप्लेस करना है, C equivalent, such that when you connect the same battery it gives you same amount of charge Q. So यहाँ पे आप ये चार्ज Q, so ये चार्ज Q इस पे आ जाएगा, इस कैपेसिटर पे ये चार्ज Q आ जाएगा, प्लस Q माइनस Q। तो आप इस चार्ज Q को C इक्विवेलेंट इंटू V लिख सकते हो, C इक्विवेलेंट इंटू V। आप Q1, Q2, Q3 इसको कैसे लिख सकते हो? Q1 कैन बी रिटन एज C3 इंटू V, Q2 can be written as, ideally इसको I should have done it this way, Q3, Q2 and Q1. Okay, so Q3 can be written as C3 into V, Q2 can be written as C2 into V, and Q1 can be written as C1 into V. ये V सबसे कट हो जाएगा, तो you will get C equivalent is equal to C1 plus C2 plus C3. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो आपका टोटल चार्ज जो होगा, योर टोटल चार्ज वुड बी इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। अब आप Q1, Q2, Q3 भी निकाल सकते हो। हमें पता है कि Q1 is C1 इंटू V, C1 एंड V के जगह पे Q by C इक्विवेलेंट लिख सकते हो। इस तरह से Q1, Q2, Q3 भी आ जाएगा। ठीक है, चलो बाय एवरीवन।